Hi everyone, welcome back to your own YouTube channel. Hope you people are doing well. Today our topic is Break 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 poem which is written by Lord Alfred Tennyson. This poem is Break 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 is written by Lord Alfred Tennyson. He is one of the most popular English poet. He was the poet laureate during Queen Victoria region. क्वीन विक्टोरिया रीजन के टाइम के वो बहुत ज़्यादा एक ऐसे पोएट थे जिन्हें क्या माना गया था, विजेता माना गया था. टेनिसन रॉट ऑन अ वेराइटी ऑफ टॉपिक्स. उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स लिखे यूजिंग राइम्स एंड इमेजनरी टू क्रिएट पोएम्स विच आर रीड एंड एन्जॉय टू दिस डे. अपनी पोएम्स को उन्होंने इस तरह से लिखा कि हम लोग आज भी उन्हें यूज़ करते हैं. राइम्स और इमेजनरी को उन्होंने यूज़ किया और आज भी जब पढ़ते हैं ना तो मन को बहुत अच्छा लगता है. उनकी पोएम में से बहुत मीन्स इंसान बोर नहीं हो सकता उनकी पोम्स को पढ़ के. हिज फेमस पोम इज यूलिसिस द लेडी ऑफ शैलॉट इन मेमोरियम AHH. उनकी बहुत ज़्यादा फेमस ये क्या थी, एक पोम थी. टेनिसन ऑल्सो एक्सेल्ड एट पेनिंग शॉर्ट लिरिक्स. उन्होंने बहुत सारे शॉर्ट लिरिक्स भी लिखे लाइक ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में. तो द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, टीयर्स आइडल टीयर्स, क्रॉसिंग द बार्स, ये सारे उनके लिरिक्स थे. The poem Break 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 was believed to have been written in 1834. That means he wrote this poem in 1834. Or why he wrote this poem? To express the grief over the death of his best friend Arthur Hallam, a fellow poet. So he is in this poem he is expressing his grief that his friend, his best friend, has died. Okay, so Break Break Break, this is a poem. I did not take any image from your book, so this is a Break 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 poem, but it is similar to your book. What is the central idea of this poem? This poem, Break Break Break, I already told you, express sorrow after the death of his close friend Arthur Hallam. The poem is a realization that comes up Tennyson of how priceless youth is and short lived nature. मैं थोड़ा सा इसको लार्ज कर दूँ PPT को. Yes, as you can see clearly. While grieving the loss of his friend, Tennyson says that nature does not stop to mourn to loss of anyone. Cold and indifferent, it carries on. The waves of the ocean breaking against the rocks along the seashore without passing even for a movement. मैं पहले से read कर दूँ completely, then I will and teach you. The rest of the world carries on as well. The fisherman's boy happily plays with his sister. The sailor merely sings. The ship busily piles the waters, isolated by his grief. The narrator yearns to touch the hand of his friend once more, to hear the sound of his voice, but Hallam is gone forever. His tender graces will never again return. Means, what is the central idea of this poem? कि जिंदगी में कोई भी चला जाए, कोई भी चला जाए, नेचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो अपने हिसाब से चलता रहता है. जैसे समुद्र की लहरें अपने अकॉर्डिंग चल रही हैं, वहाँ पे बच्चे फिशरमैन्स के बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं. शिप में जो जो सेलर है वो क्या कर रहा है, अपना मस्ती में अपने शिप को सेल कर रहा है और शिप्स अपनी जगह पर बिजी हैं. बस एक पोएट ऐसा है जो अपना दुख प्रकट कर रहा है. वो पूरे मतलब दुख में जा चुका है और कहाँ, समुद्र के किनारे बैठ के. ब्रेक 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 जो कहा गया है, ये कहाँ, समुद्र की लहरों को कहा गया है यहाँ पर. राइट. सो अब देखते हैं आगे चल के. तो सेंट्रल आइडिया लाइन बाय लाइन पोम पढ़ते हैं. व्हाट इज इट? दिस इज स्टैंजा फर्स्ट. ब्रेक 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 ऑन कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, एक्सक्लामेटरी लगाया हुआ है यहाँ पे, no apostrophe, and I would that my tongue cold utter the thoughts that arise in me. What it means the poet Alfred want to he not want to say, means he is standing on the seashore and talking to the sea waves that comes with great force and break on the cold grey rocks. वो यहाँ पे खड़ा होके अपनी से समुद्र से बातें कर रहा है. समुद्र को एक ह्यूमन बीइंग समझ के अपना दुख प्रकट कर रहा है उसके सामने. ठीक है, अपना जो दुखड़ा है वो किसको सुना रहा है, वो समुद्र को सुना रहा है. सो ही विशेस दैट ही कुड एक्सप्रेस हिज डीप थॉट वॉचिंग द सी वेव्स bettering the stones. The speaker appears frustrated that sea can keep moving and making noise while he is unable to utter his thought. Means
यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, समुद्र के सामने खड़ा अपना दुख प्रकट कर रहा है, लेकिन जो समुद्र है उसको जवाब में तो कुछ नहीं बोलेगा ना, समुद्र उसको कुछ भी नहीं कह सकता, सिर्फ वो अपना दुख प्रकट कर सकता है और समुद्र अपनी मूवमेंट कर सकता है, नथिंग एल्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो स्पीकर जो है, पोएट जो है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि ये समुद्र क्या है, मैं इसको कुछ कह रहा हूँ लेकिन ये क्या है, ये तो अपनी मस्ती में कीप मूविंग, इधर से उधर शोर करता हुआ जा रहा है, लेकिन जो पोएट है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसे अपनी चीज़ें कि वो कैसे कहे, इसे कैसे समझाए। सो द सीज लाउड रोयर इज एबिलिटी टू वेंट इज एनर्जी इज समथिंग दैट पोएट लेक्स। मीन्स जो समुद्र की जो एक कराहने की, तेज बोलने की जो आवाज़ है, वो पोएट में इस टाइम क्या है, लैक है। क्यों? क्योंकि पोएट इस टाइम बहुत ज़्यादा दुख में है कि उसके फ्रेंड की डेथ हो गई है। द रिपीटेशन ऑफ ब्रेक कन्वेज द नॉन स्टॉप मूवमेंट ऑफ द वेव्स। ब्रेक 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 यहाँ किसे कहा गया है, नॉन स्टॉप मोशन ऑफ वेव्स, कि जो वेव्स हैं वो नॉन स्टॉप चले जा रही हैं ज़िंदगी में, चाहे संसार में कुछ भी हो गया, प्रकृति तो अपना काम करती रहती है ना, बर्ड्स चहचहाते रहते हैं, लोग अपना काम करते रहते हैं, ऐसे ही समुद्र की जो वेव्स हैं वो आ रही हैं जा रही हैं, उन्हें नहीं पता कौन गया और कौन आया, मीन्स वो अपनी कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट बनाए हुए हैं। सो नेक्स्ट पैराग्राफ इज, ओहो थोड़ी सी स्लाइड इधर उधर हो गई है बट नो प्रॉब्लम। Oh, well, for the fisherman's boy that he shouts with his sister at play. Oh, well, for the sailor lad that he sings in his boat on the bay. मीन्स इस स्टैंजा में पोइट क्या कहना चाहता है कि एनवीज मीन्स वो जलन हो रही है उसे बहुत ज़्यादा। जो फिशरमैन के बच्चे हैं वो बहुत खुशी से वहाँ पर खेल रहे हैं, उसी के पास में वहीं समुद्र के किनारे वो बहुत मज़े से क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और जो सेलर है वो भी क्या कर रहा है, वो बड़े मज़े से गाना गाते हुए अपनी बोट को सेल कर रहा है। दे पोजेस जॉय एंड फुलफिलमेंट। वो कहता है कि वो तो क्या दिखा रहे हैं, वो अपनी खुशियाँ, अपनी फुलफिलमेंट एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट ही डज नॉट, लेकिन पोएट के पास इस टाइम ये नहीं है। द ब्रदर एंड सिस्टर हैव ईच अदर। भाई के पास अपनी बहन है, वो दोनों एक दूसरे के लिए हैं। सेलर के पास अपनी बोट है, वो अपनी बोट के साथ एंजॉय कर रहा है। द स्पीकर इज अलोन, लेकिन जो पोएट है वो इस टाइम पे पूरी तरह से अकेला है, उसके पास कोई भी नहीं है। दे हैव अ रीजन टू बी हैप्पी बट द पोएट डज नॉट, ही इज टू ग्रीफ स्ट्रिकन। मीन्स उनके पास रीजन है खुश होने के लिए, भाई के पास बहन है और सेलर के पास बोट है, और भी सबके पास कोई ना कोई है खुश रहने के लिए, लेकिन पोएट कहता है मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, मेरा दोस्त चला गया, मीन्स मेरी ज़िंदगी चली गई। मैं तो, वो अपने दुख के साथ ना इस टाइम पे चिपक गया है बिल्कुल, कि कोई गया तो ऐसा लगता है उसे कि उसकी भी ज़िंदगी चली गई है, बट ऐसा होता नहीं है, किसी के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती है। हाँ, हम दुखी होते हैं, उदास होते हैं, लेकिन जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो तो उसी स्पीड के साथ अपना काम करता है ना। तो यही हमें इस पोम में समझा रहे हैं पोएट। थर्ड स्टैंजा, and the stately ship go on to their heaven under the hill, but oh, for the touch of a vanished wood hand and the sound of a voice that is still. What it means poet sees the majestic ship moving to their heaven under the hill. Means what is the meaning of heaven होता है small port means जहाँ पे समुद्र जाके, कहते हैं ना जैसे बस स्टैंड होता है, ऐसे समुद्र शिप्स का जो है पोर्ट होता है जहाँ पे सारे शिप्स इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारी दूर से जर्नी जब वो तय करके आते हैं तो वहाँ जाके वो सारे के सारे रेस्ट करते हैं, एक तरह से वहाँ पे रुक जाते हैं, उनका स्टैंड है एक तरह से पोर्ट। ओके, सो इन दिस स्टैंजा पोएट सीज मैजेस्टिक शिप्स मूविंग देयर हेवन अंडर द हिल। जो उनका हेवन था वो वहाँ पर जाके क्या कर जाते हैं, वो वहाँ पे रुक जाते हैं। ईदर टू पॉट और ओवर द हॉरिजन टू सम फार ऑफ प्लेसेस, दे सीम्स कंटेंट एंड हैप्पी विद देयर डेस्टिनेशन, बट द पोएट हैज़ नो डेफिनेट प्लान इन हिज लाइफ एंड इज़ वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड। मीन्स जैसे शिप है, उनके पास एक प्लान है, वो एक यात्रा कर आए हैं, कहीं गए थे और वहाँ से आके वापस अब अपनी जगह पे रुके हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, चाहे वो बोट हो चाहे वो सेलर की बात हो। बट लेकिन यहाँ पे पोएट अपने आप को कंपेयर कर रहा है उनसे कि ये तो दूर दराज के जगहों से आ गए हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो इस टाइम पे ऐसी हो चुकी है कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है कि मुझे अब क्या करना है। सैड है पोएट और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। क्यों वो सैड है और क्यों वो ऐसा फील कर रहा है, क्योंकि जो उसका सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड था उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ही मिसेज हिज फ्रेंड डीपली whose voice and touch were so soft and tender, but now that person cannot be touched or heard as he is gone forever. Means वो चला गया है, उसकी वॉइस जो थी बहुत प्यारी थी, उसका जो टच था वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर था। टेंडर क्या होता है, लचीला।
बट लेकिन अब वो ना तो अपने दोस्त को टच कर सकता है, ना ही उसको सुन सकता है. सो जो स्पीकर है, स्पीकर इज कॉट अप इन हिज सैड डिप्रेसिंग थॉट. जो पोएट है, स्पीकर है, वो अपनी सैड डिप्रेसिंग थॉट्स में इतनी बुरी तरह से जकड़ चुका है कि अभी वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा है. इसीलिए वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट थिंग से. कभी बोट से कंपेयर कर रहा है, कभी बच्चों से उसको जेलिसी हो रही है, कभी समुद्र की लहरों से हो रही है. क्यों? क्योंकि वो अपनी अंदर की चीज़ नहीं निकाल पा रहा है, और जबकि सब खुश हैं उसके चारों तरफ. Next, break, break, break at the foot of the crags. Oh, see, but the tender grace of a day that is dead will never come back to me. Means the speaker returns to speaking about the breaking of waves on craggy. Craggy क्या होता है? Rough and uneven. Means बहुत ज़्यादा rough type का. Cliff, he feels that the waves can come again and again and touch the stones lying there, but he will never be able to recapture the happy days that he spent with his friend because now he is gone forever. The scene evokes a sense of inevitability and hopelessness. Means जो स्पीकर कहता है कि जो अब अपने आप को उससे, सॉरी पीछे के साउंड को अवॉइड करना, जो स्पीकर है अब इसमें कहता है कि जो, एक मिनट, सो सॉरी, यस, तो स्पीकर इसमें कहता है कि मीन्स जो समुद्र की लहरें हैं वो बार बार स्टोन को टच कर रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं. बट वो क्या है, वो अपने दोस्त के साथ क्या है, जो बीत गए दिन उनको रिकैप्चर नहीं कर सकता. वो खुशी वाले दिन फिर से वापस नहीं आ पाएंगे, वो जा चुके हैं हमेशा के लिए. क्यों? क्योंकि उसका दोस्त जा चुका है हमेशा के लिए. द सीन इवोक्स अ सीन ऑफ इनवाइटेबिलिटी एंड होपलेसनेस. तो ये जो सीन है, जो पोएट है, इसमें ये दिखा रहा है कि वो बिल्कुल कितना, मीन्स जैसे हमारी ज़िंदगी से कोई चला जाता है ना, हमें लगता है अब ज़िंदगी ही नहीं है, ज़िंदगी रुक गई है, होपलेसनेस हो जाती है. ठीक है, तो पोएट जो है वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा सैड है, परेशान है, दुखी है. लेकिन देखो, इस पोम से हमें एक मैसेज मिलता है कि किसी के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती, किसी के जाने से नेचर नहीं रुकता, किसी के जाने से कोई नहीं रुकता. लाइफ को हमें चलना पड़ता है, संभलना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट पोम. लेकिन पोम में अभी और भी बहुत कुछ है. वॉट इज़ एन एलिजी. एलिजी क्या होता है? एलिजी पुराने एशियन टाइम पे ना सैड सॉन्ग्स होते थे, सैड पोएम हम लोग जो लिखते थे उसे एलिजी कहते हैं. तो इसीलिए इसमें द एलिजी इज़ अ पोएम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेस सॉरो एंड ग्रीफ द डेथ ऑफ अ लव्ड वन. किसी अपने करीबी की अगर डेथ हो जाती थी तो उसका जो दुख और ग्रीफ होती थी उसको रिप्रेजेंट, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कोई सॉन्ग या पोम लिखते हैं, उसे एलिजी कहते हैं. सो दिस पोम वॉज रिटन टू एक्सप्रेस द पोइट्स एगोनी एंड इंटेंस ग्रीफ एट द लॉस ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड आर्थर हैलम. Since the poem's speaker expressed sorrow at the death of his close friend, Break, Break, Break can be considered as an elegy to an Arthur Hallam. ओके, और सो पोएटिक डिवाइसेस भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं. व्हाट इज़ अलिट्रेशन. अलिट्रेशन इसमें क्या है, इसमें अलिट्रेशन होगी ब्रेक ब्रेक ब्रेक. अलिट्रेशन मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ. अलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट्स. मीन जो सेम साउंड आता है ना शुरू के वर्ड्स में, जैसे ब्रेक, बी बी बी, तो दिस इज अ अलिट्रेशन. बोट ऑन द बे, बी बी. स्टेटली शिप, एस एस. हेवन अंडर द हिल, सेम साउंड आता है, सेम आवाज़ आती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, अलिट्रेशन कहते हैं. जैसे एक और एग्जांपल दे देती हूँ. शी सेल्स सॉक्स, एस एस एस. इट कम्स फ्रॉम लेट्रीना. नेक्स्ट है इमेजनरी. ये तो सभी पता होता है. पर्सोनिफिकेशन में थोड़ा सा बता देती हूँ. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन की क्वालिटी किसी नॉन ह्यूमन पर्सन को देना. जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ कि पोएट जो है वो किससे बातें कर रहा है, समुद्र से बातें कर रहा है. इट इज़ अ पोएटिक डिवाइस दैट यूज्ड व्हेन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट थिंग इज गिवन अ ह्यूमन करेक्टर. किसी ऐसी चीज़ को ह्यूमन का करेक्टर दे दो जो कि ह्यूमन है ही नहीं. अब जैसे कि इसमें बताया गया है, द सी इज अ पर्सोनिफाइड बाय द पोएट एज ही टॉक्स ऑफ द सी एज इफ वर अ ह्यूमन बींग. वो उससे बातें कर रहा है जैसे कि वो इंसान हो. नेक्स्ट, मेटाफॉर. मेटाफॉर क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच होती है. फिगर ऑफ स्पीच मीन्स जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग लाइक और एज, वो सिमिलर में होता है. विदाउट यूजिंग लाइक और एज जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो दिस इज अ मेटाफर.
द शिप इज़ अ मेटाफर ऑफ अ लाइफ, इसमें शिप को दिखाया था ना कि दूर दूर दराज से आता है, कुछ कर रहा है, लेकिन मेरे पास तो भी कुछ प्लान ही नहीं है, तो इसमें शिप है। एपोस्ट्रॉफी वो ओ सी में बोलता है ना। पैराडॉक्स, दिस इज अ स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट इम्पॉसिबल थिंग्स होती हैं, उनकी बातें की जाती हैं। इसमें कौन सी इम्पॉसिबल थिंग्स थी? टच ऑफ अ वैनिश्ड हैंड, साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल आर एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स इन द पोअम। मीन्स जो दो चीज़ें कॉन्ट्राडक्टरी थी ना, वो कहता है अ टच ऑफ अ वैनिश्ड हैंड, साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल। सो थीम ग्रीफ और इंडिफरेंस ऑफ नेचर। ग्रीफ में क्या था, उसके इमोशंस। ग्रीफ इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इमोशन दैट अ ह्यूमन बींग कैन एक्सप्रेस, जो दुख है सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस करता है। और प्रीडोमिनेंट थीम ब्रेक 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 है। द पोएम एक्सप्रेस पोइट्स एगोनिंग, जो पोएम है वो एक्सप्रेस करती है पोइट की एगोनी को, इंटेंस ग्रीफ को, जो कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया है। इनडिफरेंस ऑफ नेचर मीन्स नेचर में क्या है, नेचर चाहे कोई भी चला जाए, चाहे गुड हो चाहे बैड हो, नेचर अब कॉन्टिन्यूसली अपना फंक्शन करता रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हुआ है। रीड कर देती हूँ एक बार। नेचर कॉन्टिन्यूस ऑफ फंक्शन रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपन्स गुड और बैड। टेनिसन इज upset with his cold indifference of nature. He says that nature does not stop of mourn द लॉस ऑफ एनी वन, मीन्स नेचर किसी के जाने का शौक नहीं मनाता। कोल्ड एंड इनडिफरेंट इज कैरीज ऑन, चाहे कुछ भी हो ये चलता रहता है। द वेव्स ऑफ ओशन ब्रेकिंग अगेंस्ट द रॉक्स अलॉन्ग द शी शोर विदाउट पॉजिंग, जैसे समुद्र की लहरें बिना रुके अपना काम कर रही हैं। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैरीज ऑन एज वेल, कोई भी जाए कोई भी आए, जो नेचर है वो अपना काम क्या करता रहता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अपना काम इसी तरह से करता रहता है, इसी तरह से चलता रहता है। ओके, होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच। मैंने ये पीपीटी स्पेशली आपके लिए बनाई थी, इसमें सब कुछ है, एवरीथिंग, कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा कि पोएम में कुछ बचा हो, सब कुछ मैंने कवर किया है। थैंक यू।